How you all are. I hope you all are doing well in your own spheres of life. Now, here this is Ananya Mishra covering this third chapter of Asian Indian history. Now, for today's video, this is a most important chapter I can say because from this chapter, many of the questions have been framed from the sources and from the mainly from literary sources. So we will cover that, and archaeological sources also have been playing an important role. So let us study the chapter thoroughly. Let me ready the toolbox I have. Yes. Oh shit. Huh. Okay. The method of archaeology help us to recover the material remains of the past relating to ancient. Okay. Mm, इट इज़ सेइंग ये सिर्फ पूरे मुद्दे में यही कहा जा रहा है कि आर्कियोलॉजी जो है बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मेन प्ले करती है क्योंकि प्री हिस्ट्री जहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था मतलब लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमारी हिस्ट्री होती है यहाँ पे प्री हिस्ट्री होती है यहाँ पे होती है प्रोटो हिस्ट्री ये वाले जो पीरियड थे ना कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था ठीक कोई भी लिखा हुआ नहीं होता था तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती थी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती थी आर्कियोलॉजी से दैट्स वाई आर्कियोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल okay generally they are not in from prominent habitats remains but principally of fossil of women what I'm saying humans plant and animals they are found on hilltop plateaus mountain and the bank of nearby river with traces. These are not something important for you all. What you have to study is this. The remains of tools, plants, animals and humans from the pre-ice age indicate the climatic condition that prevailed at that time. Although writing was known in India by the middle of 13th millennium BC in this culture, it has not so far been described. Thus, though the Harappans knew how to write, their culture is placed by proto-historical phase. The same is the case with Chalcolithic or Copper Age culture, which had no writing. Okay, that's mean that period after that, just like Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic, and that Neolithic, don't have that what we call that written record. We all know from it by the archaeological evidence. Okay. From the archaeological evidence, we find out that the culture can be single culture in which only one culture there is dominance. There will be then मेजर कल्चर दैट्स मीन दो कल्चर है एक माइनर है एक मेजर है और एक होता है मल्टी कल्चर माउंट जिसमें हर टाइप का कल्चर एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है पेंटेड ग्रीवर सेकंड वाले का एग्जाम्पल है मेजर कल्चर का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया नहीं दिया रामायण एंड महाभारत आप मेजर कल्चर का एग्जाम्पल कैसे बताऊँ इफ दिस इज इंडिया ये पूरा पैनली पूरा तो मुगल के अंदर ही था लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे रीजनल स्टेट्स थी राइट ये हो सकता है मेजर कल्चर यहाँ पे हैदराबाद यहाँ पे अवध यहाँ पे बिहार वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है शायद आप लोग नहीं समझोगे देखो माउंट क्या होता है ना जहाँ पे एक माउंट इज टाइप ऑफ अ हिल इन विच we excavate to find out about the history. Okay, it can be excavated by vertically कर लो या horizontally कर लो vertical और horizontal में हमेशा confuse होते हैं मेरी तरह होता है चलो भाई छोड़ो देखो vertical is this one horizontal is this one मैं B के ऊपर H V के ऊपर H मैं गाना बना लेती हूँ जैसे कि CPSP का फॉर्मूला मुझे एकदम भी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इसका फॉर्मूला मुझे एकदम भी याद नहीं होता जैसे कि CPSP मुझे अब याद है SP ऊपर CP नीचे दैट्स मीन उसका अगर परसेंटेज हमको निकालना है दैट्स मीन वी हैव टू डिवाइडेड इन द अपर केस एंड द लोअर केस इफ़ यू आर अ मैथ स्टूडेंट यू कुड नो द पेन
This one is vertical, this one is horizontal. Horizontal. What I am saying, my accent are just gone. So V के ऊपर H. Now, as more site has been vertically, they provide a good chronology sequence of material culture. और horizontal वाले जो करते थे वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत कम होता है. हॉरिजेंटली सीक्वेंस बताते हैं हमें. ओके. नथिंग इम्पॉर्टेंट सो नो. ओके. मेगालिथिक, ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है. इन द साउथ, यहाँ पे इन साउथ पीपल जो थे ग्रेव्स मतलब व्हाट इज ताबूत with that along with their tool weapon pottery encircled by a large piece of stone. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? मेगालिथिक. Although megalithic don't fall into this category, by digging them we learn to the file life of Deccan from of Iron Age onwards. कार्बन डेटिंग, ये एक ऐसा डेटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक बार में तो समझ एकदम भी नहीं आएगा. ये जो पूरा लिखा हुआ है इसके ऊपर नहीं जाना. मैंने इससे पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली. देखो हमारे बॉडी में ना एक सब्सटेंस होता है वी कॉल्ड एज कार्बन 14. ये आफ्टर द डेथ जो होता है ये बढ़ता जाता है या कम होता जाता है ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ फिनोमिना होता है. पर ईयर पर एक यूनिट्स पे वो घटता जाता है. देखो टेक्स प्लेस एट अ यूनिफॉर्म रेट. तो ये एक यूनिफॉर्म रेट में होता है. फिर ये जब उसका यूनिफॉर्म रेट जब हमको वो चीज़ मिली है तो कार्बन डेटिंग करके जितना भी डिक्रीज हुआ है तब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये कौन से टाइम का. दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग. बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ही याद है. मुझे इसको समझने में 4 बार इसे पढ़ना पड़ा है. ठीक है, अभी नहीं समझा मैंने. द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज एंड स्पेशली थ्रू पॉलन एनालिसिस. ऑन दिस बेसिस ओनली ये सजेस्ट किया गया कि राजस्थान और कश्मीर में अराउंड 7000 to 6000 BC में एग्रीकल्चर होती थी. देखो पर अभी का जो कंडीशन है ना वहाँ का एग्रीकल्चर शायद ही पॉसिबल हो अभी इस टाइम पे. इसीलिए तो वी फ्रॉम दैट अभी तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था. इस पोलन के एनालिसिस के बाद अगर ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं होता तो नो वन कैन इमेजिन दैट एट नाउ नो वन कैन इमेजिन कि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता था या हो सकता था. राइट. जैसे कि एनिमल्स की बोन्स से एग्जामिनेशन से पता चला कि कौन से डोमेस्टिकेट किए जाते थे कौन से एनिमल. जैसे कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ वाइल्ड डॉग्स. मतलब वाइल्ड डॉग का भी एंसेस्टर्स मतलब उसका भी पूर्वज. यस. सिमिलरली द वर्ल्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल कीप ऑन चेंजिंग थ्रू अ स्लो पेस. यहाँ पे क्या तुमको समझने का कॉन्सेप्ट है पता है? तुमको सिर्फ ये समझना है. ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये देखो, ये हमारा हिस्ट्री. दिस इज आवर हिस्ट्री. हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको आर्कियोलॉजिकल सबसे पहले लिखूंगी मैं इसको. फिर यहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा जियोग्राफिकल हिस्ट्री. फिर और दिस वन व्हाट यू कॉल दैट बायोलॉजिकल हिस्ट्री. बस और कुछ नहीं चाहिए. कॉइन्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन जो है फाउंड हो गए हैं बाय डिगिंग. हमको फाइंड हुआ. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक एज वी ऑल नो. 6th क्लास में हमें पढ़ाया गया. एशियन कॉइन्स वेर मेड अप ऑफ मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड लीड. अब इससे अगर जैसा कॉइन पाया गया ना वैसे अब हम लोग उस स्टेट की इकोनॉमी पता कर सकते हैं. पता क्या कैसे? देखो एक है हमारे पास ए, यहाँ पे है एक बी. यहाँ पे हमको गोल्ड कॉइन पाया गया, यहाँ पे सिल्वर कॉइन पाया गया. गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है. दैट्स मीन अगर वो लोग गोल्ड यूज़ करें दैट्स मीन उनका इकोनॉमी अच्छा खासा है. अच्छा खासा तो ऑब्वियस सब आता है. बी एम्पायर जो रिच है ए एम्पायर से. पता है ऐसे पढ़ो हिस्ट्री को. द यूज ऑफ सच माउंट इन पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्चुअली डिसअपीयर. अच्छा माउंट मतलब अब क्या माउंट मतलब कैसा बोलूँ? ढांचा. हाँ ढांचा. यहाँ पे एक मोल्ड है एक बर्तन टाइप का कुछ भी बोल लो. फिर वहाँ पे उसमें पोर होता है
जो लिक्विड है फिर उसको फिर कवर कर दिया जाता है किसी से, और फिर वो एक ये बन जाता है, कॉइन बन जाता है। एज देर वहाँ पे कोई भी बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो प्रीशियस होल्ड ऑन दे कुड बैक फॉल बैक इन टाइम ऑफ नीड। ओके, पीपल जो थे वो मतलब अर्थनवेयर मतलब क्या, एक पॉट होगा उसमें पैसा डालेंगे और फिर उसको अंदर किसी ज़मीन में गाड़ देंगे, ठीक है, ऐसे किया करते थे। अभी भी बहुत सारे जो इंडियन कॉइन्स है अभी रोमन एम्पायर में हमें फाइंड होता है, क्योंकि मैंने बताया कि चोलास जो थे उनका जो ट्रेड होता था बेनली विथ रोमन, दैट्स मीन यहाँ का कॉइन जो था वहाँ पे मिलना ऑब्वियस सा बात है। और बहुत सारे जो मिला है उसे पटना, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में ये लोग को स्टोर कर दिया गया है। म्यूजियम जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी कुछ कुछ स्टोर है अफगानिस्तान को लेके। ओके ओके, अब देखो अर्लीस्ट कॉइन जो थे कुछ सिंबल्स को दर्शाते थे, इससे पता चलता था कि जो किंगडम है उसका क्या सिंबल है और क्या रीजन ऑफ सर्कुलेशन है, ठीक है। एज कॉइन वॉज ऑफ वेरी पर्पसेस, डोनेशन के लिए यूज होता था, पेमेंट के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कंसिडरेबल लाइट ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बता दिया। कॉइन जो थे गिल्ड्स में बनाते थे, गिल्ड्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर, ओके, बट बाय द परमिशन ऑफ द राजा, एंड जो बनाए गिल्ड्स में जो राजा थे ना उनका ही वो लोग पिक्चर सिम्बोलाइज करते थे। ओके, गुप्ता जो है एक लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कोइन उसमें इंडिकेट हुआ है, और कुशानस के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत ही इंडिकेट हुआ है। दस मीन ट्रेड जो एंड कॉमर्स जो था वो फ्लरिश्ड था। ओके, कॉइन जो थे पोर्ट्रेट किंग एंड गॉड एंड कॉन्टेन रिलीजियस सिम्बल्स, जैसे कि पहले बता दिया मैंने। अगे इंस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आया है, हाँ। इंस्क्रिप्शन वेर कर्व्ड ऑन सील, स्टोन पेपर, अरे मैंने बताया नहीं था उस दिन, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लिख लो, लिख लो, दिस इज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इन इंडिया एज अ होल क्रिश्चियन एरा जब तक चल रहा था, कॉपर प्लेट बिगेन टू बी ऑन, वी हैव आल्सो इन रीजन लार्ज नंबर, yes, walls of temple and a permanent record, because at that time temple was considered to be a holy place and there no one can destruct it now. We have to use some brain. पता है हिस्ट्री को ब्रेन से समझना है। इस बुक में मुझे सबसे बड़ा बात ये लगता है कि वो सिर्फ तुमको नॉलेज बता रहे, जैसे कि अर्ली वीडियो में मैंने कहा है, तो लोग नॉलेज बता रहे सर आपको, आर एस शर्मा सर, तो इन्होंने सिर्फ नॉलेज बताया। अब आपको खुद उस पर लेना, ये ओपन है एकदम, बुक एकदम ओपन है, अब आपका ओपिनियन है कि ये कैसा होना चाहिए, एंड दिस इज दैट क्वालिटी यू शुड हैव। ओके, this is not too important. Okay, this one, yes, this one is important very much. Most Ashokan inscription are in Brahmi script, लेफ्ट टू राइट रिटर्न है, एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है, जी वो भी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दिस वन इज माय राइट हैंड, लेफ्ट टू राइट इज दिस वन, राइट टू लेफ्ट इज दिस वन। ये वाला जो है ना, ये वाला इसके लिए थोड़ा अनकॉमन ही लगता होगा, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं अभी भी। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी ये हुए थे हड़प्पा में, जैसे कि सिंबलाइज करता है बाई सम स्कॉलर। इसको हम क्या क्या ओल्ड इरानियन स्कीम देख लो, ये कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, हिंदू एंड सिंधु एरिया में फाइंड आउट हुए हैं। Brahmisian and Prakrit language was a common language used by the common masses, and Sanskrit was the language used by the priests. Okay. Okay. Just remember the places here. These are important places. Okay, yes. देखो अब इंस्क्रिप्शन जो था दो कैटेगरी का था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, मतलब किंगडम के बारे में जो बताया, एंड सेकेंड था जो किंग के बारे में बताया। अशोकन का जो इंस्क्रिप्शन था वो दोनों कैटेगरी का था, जैसे कि फॉलोअर बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे उसके किंगडम्स के बारे में बताया गया। टेबल्स देख लो, कौन से कौन को आया, कौन से कब किया। ओके, अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। और सेकेंड कैटेगरी जो कि सिर्फ समुद्र का गुप्ता के बारे में बताया, वो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसे हम लोग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति इज नथिंग, प्रशस्ति मीन्स
और बढ़ा चढ़ा के तारीफ, अरे चापलूसी, यस दैट टाइप. Mostly engraved in the copper plates. I think this is clear to you all. Literacy sources. Let us cover this topic also. प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ होता था, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में. और राइटिंग ऑफ आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन बट दे आर गुड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था. मैन्यूस्क्रिप्ट वेर हाईली वैल्यूड. क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो है विद द टाइम डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय द नेचुरल कैलेमिटीज एंड बाय द पीपल. लेकिन लिटरेसी सोर्स एक बार लिख दो ना तो कुछ नहीं होगा. जैसे कि हर बार इन टुडेज लाइफ ओनली वी ऑफन सेज दैट ये बेंच पे तुम नहीं बैठ सकते. इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ स्कूल, ये बेंच पे तुम नहीं बैठ सकते. द पर्सन विल क्या बोला है, तुम्हारा नाम लिखा है. दैट्स मीन वी बिलीव. लिखा हुआ मीन्स इट्स एन इमोशन. कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा लिखा हुआ है, रिटन है. ओके, दिस इज द मेन थिंग वी शुड हैव. तो ये मतलब जो लिखा है, जो परमानेंट है ना, वो ज़्यादा वैल्यूड होता है. पुराने से ही है, पहले से. पुराना क्या होता है भाई? हिस्ट्री से ही, इतिहास. हाँ, इतिहासों से ये है. ओके, रामायण महाभारत पुराण. ओके, दिस वन. बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है वेदास महाभारत के बारे में हम लोग पता है, पुराणास के बारे में पता है. बट इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज देम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड अ प्लेस. ऋग्वेदा असाइंड ए 5 to ये वाला यजुर्वेदा बारहवें to this one. ओके, देखो. The Rig Veda mainly comprises prayers, whereas the later Vedic text comprises prayer as well as rituals. Means the society जो थी वो बहुत ritualistic हो गई थी. And Upanishad content philosophical. Sorry. These subblended of Veda comprise poetic, ritual, kalpa, grammar and etymology. Metrics and astronomy. Precept was called Sutra because of its brevity. Okay, I think clear to you all. The two big epics, जैसे कि the major Puranas have been finally compiled AD 400 and the Mahabharata attributed to Vaishya. Okay. They were increased from भरता, मतलब पहले जो थी 8 वर्सेस जिसे जया कहा जाता था, फिर उसे इंक्रीज करके भरता हो गया. एंड अगेन फ्रॉम 10,000 से हुई एंड देन इट्स बिकम महाभारत. रामायण देख लो, यहाँ पे 600 वर्ष की थी, फिर 2400 की, फिर महाभारत. एंड देन द महाभारत इज टू एज ए डेडिकेटेड पार्ट विच वर सब्सिक्वेंटली एडेड. बहुत सारे पार्ट्स जो हैं विथ धीरे धीरे करके ऐड किए गए. In the post-Vedic period, we have a lot of ritual. Wait. Yes, this one is important. Shauras. ये क्या होते हैं? 3 higher varnas or set of sources which is provided for several Austrian royal foundation ceremonies. Similarly, domestic जैसे कि कुछ ये हो गया तो उसे भाई राजा सर्वसूत्र होता था. गृहसूत्र मतलब खुद ही फैमिली के अंदर कर लो. मेंशन में ऑल्सो भी मेड फॉर सर्वसूत्र जो हमें प्रोवाइड करते थे ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड. ये जो सर्वसूत्र गृह सूत्र थे, सूत्र से ये बेसिकली हमें बताते थे अबाउट द रिचुअल टू बी डन इन द क्या नियम क्या है, कायदा क्या है किसी चीज़ को करने का, लाइक दैट इन द रिचुअलिस्टिक स्टडी. देखो, गौतम बुद्धा के बारे में तो कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5050 वर्ड्स है इन द बर्च जटा का, और एक वर्ड में वो अलग अलग जीव बन के अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जैना टेस्ट बेसिकली वेलबी इन गुजरात में पाया गया है, ऑफ यूपी बिहार, एज ऑफ महावीरा. ओके, लॉ बुक धर्मशास्त्र कहा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग सबको कि इनको धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये मानना था तब के पीपल का. ओके, ये प्रिस्क्राइब करता है द ड्यूटी टू बी परफॉर्म इन डिफरेंट वर्नास. ओके, मैरिज से रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर इज टू बी हेल्ड एंड इनहेरिटेड. A to Z हर चीज़ से डील करता है, पनिशमेंट से भी, फिर पर्सन गिल्टी से भी, अशॉर्ट से भी, मर्डर से भी, अडल्ट्री पे भी, एंड द लाइक. एंड इम्पॉर्टेंट लॉ बुक अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य
विच इज़ एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य, एक बहुत अच्छा बुक है, इट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसमें बुक 2 एंड बुक 3 जो है ये एक अर्ली डेटेड किया जाता है इसमें, और डिफरेंट हेर्मेनेटिक्स और फाइनली कॉम्बाइंड द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। ओके, बहुत सारे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी थे जैसे कि अष्टधनी और पन्नी। देन देयर वाज अ पतंजलि टू, आई कांट फाइंड दैट, पतंजलि शायद इस पेज में होगा। ओके, पतंजलि जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था पन्नी पे, जनपदास का डिस्कशन जो है पन्नी में किया गया। देयर वर ऑल्सो मेनी लिटरेसी बाय ऑफ भाषा, शूद्रस, कालिदास एंड बनभट्टा। कालिदास का वह काव्य है अभिजन शकुंतलम, ठीक है। संस्कृत सोर्स के साथ साथ हमारे पास तमिल से टेक्स्ट भी है जैसे कि संगम लिटरेचर। संगम एज के बारे में भी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले, डोंट नीड टू वरी अबाउट। देखो बेसिकली संगम लिटरेचर जो था ना, बेसिकली वो लोग सिर्फ वो लोग डील करते थे विद पोइट्री। उन लोग के ये में पोइट्स का संगम क्या होता है, मीन्स मिलन, बैठना, एक साथ बैठना, मीटअप, राइट, वो सही का ही। तो पोइट लोग मीटअप करते थे और राजा के बारे में ये बताते थे, प्रशंसा करते थे, जस्ट लाइक प्रशस्तिस। तो वो जैसे भी एक लेवल का, अलग लेवल का लोग वो सब करते थे, लेकिन उससे ज़रा सोशल एंड कल्चर का हम लोग को हेल्प मिला। ओके, 10 songs, पतंजलि, द 80 lawyer section, द 400 of the exterior, ये सारी चीज़ें ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो मेंशन। देखो जो संगम टेक्स्ट है डिफरेंट था वैदिक टेक्स्ट से, पर्टिकुलरली द ऋग्वेदा। दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू रिलीजियस लिटरेचर, बल्कि बहुत सारे पोएट हैं इन प्रेज ऑफ द वेरियस हीरोज एंड हीरोइन एंड दस इन सेक्युलर इन नेचर। प्रिमिटिव पोएम नहीं है, हाई क्वालिटी का लिटरेचर है। ओके, रिसाइट किया जाता था भाई कोर्ट में। होमरिक परहैप्स द प्रॉपर नेम, टाइटल एंड डायनेस्टी वर लाइक मेंशन द पोएम आर पार्शली, मतलब उतना कुछ मतलब किंगडम का नेम में बता दो, राजा का नेम बता दो, उतना कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, ठीक ठाक है। संगम लिटरेचर कावेरी पट्टनम वाले एरिया पे बताया गया, जैसे कि आर्कियोलॉजी से उसे पढ़ा जाता है। फिर पेपर विद गोल्ड, women slaves to the native. This trade is not only from Latin Greek writing but also through the archaeological records. Okay, ये trade किया जाता था। Next, foreign account. We are gonna read this foreign account. I think chapter end होने को ही है। मैं बोल रही थी चैप्टर एंड होने को है, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ब्रो, 23 मिनट हो गया। पता चल रहा है कि तो बड़े बड़े चैप्टर है। चैप्टर 4 और 5 छोटा छोटा चैप्टर है। मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँगी, इतना छोटा है क्योंकि आज संडे है ना, इतना काम नहीं है हमारे पास। फॉरेन रिकॉर्ड, चलो भाई जल्दी पढ़ते हैं। फॉरेन रिकॉर्ड से हम लोग इंडिकेट करते हैं ग्रीक एंड रोमन चाइनीज विजिटर। इसमें उतना कुछ खास तुमको ये जानना है कि कौन आए थे, कहाँ से आए थे और क्या लिख के गए और क्या फ़ायदा क्या हुआ है। हमको फ़ायदा बताओ बेटा, मेरा फ़ायदा क्या हुआ है। ओके, देखो ग्रीक राइटर जो कि आए थे संतोरकर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट हु इन्वेडेड इन 326, जिसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने बताया था। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, दिस इज़ वेरी फ्रेम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली यूपी बोल रही हूँ, पाटलिपुत्र वाले एरिया पे सिचुएटेड थे और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को बताया करते थे, ठीक है। इंडिका इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रेडिट एंड एक्सक्रेशन विच इज़ ट्रू मेनी अदर एशियंट अकाउंट। अब देखो ये सारे जो फॉरेन रिकॉर्ड होते थे ना, उस पर रिलाई करना ज़्यादा इजी भी होता था, क्योंकि ये सारे जो प्रशस्तिज होते थे ना वो लॉयल थे किंगडम्स को लेके, कि हाँ मैं लॉयल हूँ किंग को लेके। लेकिन ये सारे लॉयल नहीं होते थे ना, ये सारे जो व्हाट वी कॉल दैट पिलग्रिम्स, नो फॉरेनर्स जो थे, बेसिकली क्या उनका इंटेंशन था कि बस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, उसका सोसाइटी क्या है, इकोनॉमी डेवलपमेंट क्या है,
ये सारे को इंडिकेट करना। राजा का प्रशंसा करना मैं नहीं करेगा ब्रो, ऐसा उनका कहना था। ये बुक याद कर लो, दिस इज बुक इज इम्पोर्टेंट। हाँ माना नाम भरा है, लेकिन क्या करेगा, तो करना पड़ेगा ना। इन्होंने बहुत सारे अकाउंट ऐसे भी है जो कि इंडिकेट करते थे इंडिया एंड रोम एम्पायर का छेद। ओके, हवा में ही बातें नहीं होता था, सचमुच होता था। And now this Pliny of Natural Historia which first century इंडिया इटाली के ट्रेड में बात करते थे। ग्रेशियो रोमन स्कॉलर जैसे कि कॉस्मोस ऑफ इंडिकोपोलिस, ही हेल फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया, क्रिश्चियन टोपोग्राफी इन इंडिया, बस इससे उतना जानने का जरूरत है। चाइनीज ट्रैवलर जो कि थे फाहिन एंड तोजैंग, Swan yes, to study Buddhism from the Nalanda University. देखो फाहिन गुप्तास के पीरियड में आता है, सांग जो थे हर्षा के पीरियड में, जस्ट आफ्टर द गुप्तास एज। ओके सर, ओके विलेज स्टडी, कम्युनल शेयरिंग, फीस्ट फेस्टिवल, पूजास जो थे, लॉयल्टी टू द क्लैन, ठीक है, सर्वाइवल, फिर हाई कास्ट पीपल डू नॉट मिल्क काउ एंड नेवर टेक टू द प्लग, ये सारी चीज़ें, फिर रेबल अनटचेबिलिटी थी, ये हमें पता चलता है। रिलेशनशिप, ओके, टू कास्ट बट ऑल्सो टू द कलर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। टिल द 1930s सती भी प्रैक्टिस की जाती थी इन रूरल पार्ट ऑफ बिहार। Okay, rural ritual and caste prejudice is illustrated mainly by Dharmasastra, governing on our Asian polity and society. Natural science. Now, recently the use of science has begun. Evidence from chemistry, geology, biology has become relevant from the Asian past. That's proof that जो people थे वो लोग chemistry, geology, biology में and astronomy में भी बहुत ही efficient थे। चाणक्य को तो आर्यभट्ट, चाणक्य, राइट, बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। ओके, एशियन इंडिया आर चार्ज विद लैक ऑफ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इट इज एविडेंट दैट दे डिड नॉट राइट हिस्ट्री इन मैनर टू डन टुडे, नॉट दे राइट इन द वे ग्रीक्स डिड। वी हैव अ शॉर्ट हिस्ट्री इन द पुराणास, 18 in number, it's in 18 in number, encyclopedia in content. Okay, they mention the places where the event took place and sometimes discuss their cause and effect. Statement about event in the future tense although they were recorded much after event had occurred. मतलब इवेंट के ऑक्योर होने के बाद बहुत ही बाद में किया जाता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इवेंट में ज़रा सा कुछ अपने तरफ से एडिशन एंड बदलाव हो गया हो। पुराना स्पीक करते थे अबाउट 3-4 एजेस, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, एंड दिस वन इज कलयुग ओनली। देखते हैं कब दुनिया में कलयुग का अंत होगा, दुनिया अंत। अच्छा, कमेंट करो इफ़ यू ऑल बिलीव इन दिस 4 एजेस। ओके, टाइम एंड प्लेस, जैसे कि धर्म बिकम अधर्म विद द टाइम। ओके, जैसे कि इसमें कलयुग में बताया गया कि विद द टाइम, द्वारपार से कलयुग, ये जो है अधर्म बन जाएगा। ओके, इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। ओके, सिमिलरली फॉर, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, हटाओ। ओके, good example of his composition is Harsha Charitra, which is by Banabhatta towards the Harshvardhan, the career of Harshvardhan. Okay, मैंने जो बुक का नाम अंडरलाइन कर रही हूँ, पढ़ लेना। और मैंने बोला था ना ऑथर एंड बुक पे काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगा। नाउ अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे, बिकॉज ये शायद कंक्लूजन ही ना। हाँ, अब इतना सारे जो हमने पढ़ा है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे तो आना बनता है कि आखिरकार हिस्ट्री हम लोग कैसे कंक्लूड करें। और ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं। मतलब कोई बोलेगा कि नहीं मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें पुरानास को लेके भी बहुत कुछ कहा गया, बट दिस इज प्रैक्टिकल। ओके, डोंट बी सो ऑफेंड बिकॉज वी आर जस्ट हियर फॉर स्टडिंग ओनली। मुझे
बस यहाँ पे मैं पढ़ाने आई हूँ. इट्स ऑल ऑफ योर व्यू हाउ यू टेक इट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ. ओके, देखो तो फार एज न्यूमरस प्लेस जो है वो फाइंड हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है क्या पता है यहाँ पे सिर्फ. ओके, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया प्रोटो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री, वो इस पैराग्राफ में बताया गया. लेट्स मूव इन दिस वन. देखो, एशियन हिस्ट्री जो है प्रिंसिपली ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी एंड फॉरेन इंडिजिनियस कॉइन्स इंस्क्रिप्शन ग्रेटर वेटेज. क्यों पता है? क्योंकि लिटरेसी, देखो दिस में भी, अच्छा मैं बाद में बताऊंगी. जो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं एकदम स्टार्टिंग से एक चीज़ मेरे मतलब बड़ा ही ये चल रहा है, चुल मचड़ा उसको बोलने का, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक बार आप, मैं अभी बोलूँगी तुम लोग नहीं मानोगे. अगर एक बार ये सारे पढ़ लोगे ना, एकदम एंड में बताएंगे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. नाउ न्यू मेथड मस्ट बी अडॉप्टेड. हिस्टोरिकल नॉलेज कीप्स ग्रोइंग. We have to make critical about the date and context of the texts. Okay. Initially, archaeology was inspired by the written records and several sites mentioned in the Brahmanical and Buddhist texts were excavated. लेकिन जहाँ जहाँ एक्सकवेशन का इंफॉर्मेशन मिला, ये एकदम क्वान्टिफाई नहीं है कि वहाँ पे हमको मिल ही जाएगा हर चीज़, ये बताया गया है. Though full length of report of main excavated sites are yet to be published, it is advisable that examine the text to the same archaeological finding. We have to take account of Gandhara grave culture, in which horse was used and the dead were cremated in second millennium BC. We have to establish a correlation between later Vedic age on the other hand to the painted graves. Archaeological evidence should be considered far more important than a long family tree found in Puranas. Puranic tradition जैसे कि Rama of Ayodhya and the Krishna play an important role in Mahabharata, which is situated with Mathura. लेकिन after the excavation there is no, what we say, that there is no legal evidences, there is no archaeological evidences. Okay, on chronology and rational ground, ये जो हमारे पुरानाज है, ये आर्कियोलॉजी इंस्क्रिप्शन कॉइन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्स्ट. क्योंकि क्रोनोलॉजी एंड रैशनल ग्राउंड में अगर हमको रैशनल व्यू मतलब क्या होता है पता है ना, जो अच्छा है ले लो, जो खराब है फेंक दो. 10 बार बोल लिए होंगे हम इस ये लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर में नहीं, मतलब जितना भी लेक्चर कंडक्ट किया है एशियन यूनियन हिस्ट्री का, क्योंकि आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पनिनियन पतंजलि एक फिक्स डेट पे कर भी सकते हैं, क्योंकि ये मिथ एंड लेजेंड से ना, मतलब क्या बोलिए, अलग है. पनिनियन पतंजलि इज समथिंग रिलेटेड टू अ टॉपिक, जिसमें ज़रा सा आउट ऑफ द ब्लू है ये सारे पुराना से. ओके, ना हिस्टोरिकल वैल्यू इज टेकिंग टू मीन नेसेसरी एंड रिकन्स्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री. पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में रिकन्स्ट्रक्शन तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं. मेरे पता नहीं क्यों ये दुख रहा है, गला दुख रहा है बोलते बोलते, कंटिन्यूसली बोल रही हूँ ना शायद इसीलिए. अच्छा, ज़रा सा ब्रेक ले लेते हैं गाइस. मैं ब्रेक ले लेती हूँ यार, 8:01 हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का. तो पानी वानी पी के हम बैक अगेन. तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे देना. Yes, the term 100 and 1000 seems to be cliché in Ashokan inscription. It is applied to people and animal and raises doubt about the number of people killed in the Kalinga war. Those brought to Patliputra. Means बहुत कलिंगा वार में कुछ पीपल मर गए थे और कुछ पीपल को पाटलिपुत्र में ला दिया गया था. तो ये नंबर्स में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है. Despite its exaggeration, in comparison to Puranic tradition, inscriptions are certainly more reliable. Thus, though the Puranas were used to push back the origin of Satavahanas, inscription may dedicate the regional period of the kings. Okay, polity, society, economy, and religion. Epigraphic land grant are valued not for the family trees and list of conquest. जैसे कि फैमिली ट्रीज एंड लिस्ट जो है पुरानिक को ही बोला जा रहा है, पुरानिक इतिहास, पुराना कल्चर. ओके, इन सीम अ केयरफुल कलेक्शन ऑफ मटेरियल डिराइव फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब रैशनल व्यू लेने का. ओके, आर कंसिडर मोर इम्पॉर्टेंट एपिक्स एंड पुरानास.
देखो एट द एंड कंक्लूजन पे क्या पता है कंक्लूजन क्या आता है, ये देखो, once my father said a line which I am remembering, अगर आप लोग लास्ट तक हो तो आई एम टेलिंग यू दिस लाइन, ये ऐसा चुन नहीं मुझे बस अभी याद आ गया। देखो माई फादर सेज दैट इफ़ यू टेक वन वर्क, एक वर्क है एंड आप उस एक वर्क को 10 जन से करवाओ, आप अगर उस 10 जन से करवाओगे देर विल बी 10 ways to do that work, there will be 10 new ways to do that work. Now what we can do to become unique, we will take some part of someone, some part some. With that way we could create our complete bucket and it will be a unique, right? अब तुम अच्छा मान लो किसी शादी में गया तो तुम सिर्फ सैलेड नहीं लेते हो ना, तुम सैलेड में ही पेट भर रहे हो नहीं ना, तुम मेन कोर्स से थोड़ा लोगे या फिर स्टार्टर से कुछ ले लिया, सलाद कुछ ले लिया, दैट्स मीन तुम अपना कंप्लीट करते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो तुम सिर्फ एक पे नहीं कि नहीं हम सिर्फ आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंडेंट होंगे, नहीं, आर्कियोलॉजी को भी फाइंड करने के लिए हमको ज़रा सा लिटरेसी से जानना होगा। एंड आर्कियोलॉजी में अगर कॉइन्स के बारे में जानना है तो तुमको ज़रा सा इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से लेना होगा। दिस मीन we have to historians have to take a rational view in the collection of the materials। बहुत बोल लिया मैंने, तो ये चैप्टर तो मैं आज कवर कर दूंगी। अच्छा एक ब्रेक लेके तो कर ही सकती हूँ बिकॉज इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो भाई, तो ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि ये भी इजी बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही मुझे लग रहा था लेंदी टाइम लगा करने में, लेकिन उतना कुछ खास टाइम नहीं लगा था। नहीं लग गया, लास्ट टाइम भी 40 मिनट्स लगे थे, ये भी 36 मिनट्स, 4 मिनट और बोल लो तो 40 मिनट से कम नहीं होगा। अच्छा तो अब बातें करते हैं, सिर्फ बात करेंगे। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से टू यू, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। मैं बोलती रह रही हूँ, तुम लोग करते नहीं हो। क्यों भाई, कर दो, क्या दुश्मनी है मुझसे। अच्छा पता है मैं बहुत दिन आई वॉज नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सब्सक्राइबर, तुम लोग को लग रहा होगा जो लोग कंटिन्यू हैं तो उन लोग को लग रहा है कि मैम सब्सक्राइबर बढ़ गया, आप तो केयर ही नहीं कर रहे हो। पता है कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं है या कोई न्यू नहीं आया है, बस मेरे फ्रेंड 3 जो है न्यू आया ना, 21 हो गया शायद, 17 था, 4 राइट 4, तो वो जो 4 आया ना वो मेरे फ्रेंड है, किसी एक फ्रेंड को मैंने दिया था और उस फ्रेंड ने अपने ग्रुप पे डाल दिया, तो वहाँ से तो मैंने उसको डिलीट करवा दिया क्योंकि मैं आई वॉन्ट दैट जो जेन्युइन है सिर्फ वही सब्सक्राइब करे, उन्हीं से व्यूज़ आए, कम व्यूज़ आए लेकिन जेन्युइन व्यूज़ आए। तो ये 40 मिनट्स का वीडियो तो है, लेकिन बहुत लोग स्टार्टिंग में देखेंगे ज़रा सा वीडियो एंड देन दे विल गो, वैसा नहीं चाहिए मुझे। ज़रा आप ज़रा सा ही देखो, लेकिन देखो तो ज़रूर पूरा, जो हेल्पफुल है सिर्फ मुझे नीडी को हेल्प करना है। तो वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं तो इसीलिए मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ यार। कब आएंगे अच्छे खासे व्यूज़, छोड़ो भाई, जो भी हो मैं अपना काम करूँगी, बाकी सब आप पे डिपेंड है। तो आई थिंक we have completed this chapter very clearly. We will cover the next chapter very soon. Okay, till then stay tuned. Oh wow, what a rhyme. We will cover the next chapter soon. Till then stay tuned. Yeah, this is my line now. I will gonna use it. It's in this line I have the monopoly. And if you are having any kind of doubt, we also have doubt sessions. एक ही डाउट सेशन लिया है मैंने, जितने भी सारे डाउट्स थे तो डाउट जो है वो सारे कमेंट कर डालो, जितने भी डाउट हैं। मैं एक दिन लूँगी सारे डाउट को, और सारे एक दिन मतलब ऐसा नहीं कि एक साल में एक बार, नहीं, थोड़ा रिसेंट पे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड ऑन डाउट, कितने नंबर ऑफ डाउट्स है। तो यहाँ पे हम लोग 38 मिनट्स पे, ज़रा सा एक मिनट तक और बक लो तो फिर 40 मिनट्स हो ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बोल ही लेते हैं। पता है देयर वाज एन मैथ्स एग्जाम एंड मैं 3 गलती कर दिया। ओ माय गॉड, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन द मैथ्स टू। पता नहीं व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू ऑल, बट स्टिल आई फील लाइक आई शुड शेयर इट टू यू ऑल। सो मुझे लगता है जहाँ तक आफ्टर कंप्लीटिंग द एशियन हिस्ट्री वी विल मूव टुवर्ड्स मॉडर्न वन, क्योंकि मिडिवल का उतना कुछ खास वेटेज नहीं है। मॉडर्न एक बार कवर कर लेंगे हम लोग, फिर एक बार मिडिवल पे चले जाएंगे। मिडिवल आप लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, ठीक है।
मेनली मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, मेनली इट्स इंस्पायर फ्रॉम, पता है मैंने यूट्यूब पे ये चैनल क्यों स्टार्ट किया? इट्स इंस्पायर फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड सुपर 30। आनंद कुमार फ्रॉम बिहार, वो एक बिहारी थे and उनका जो अप्रोच लगा ना मुझे, इट वाज जस्ट ऑसम। उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इट्स एन स्मॉल स्टार्ट एंड इफ इट इज ग्रोइंग, इट स्टार्ट टू ग्रो, we will also enhance this Saraswati classes. Okay. So with that said, tata, take care.